A very good morning to all my dear students. Today we are just going to start our new lesson from our literature portion, that is the Happy Prince. So here this very lesson has been written by Oscar Wilde. Here we come to know that how this very title holds an ironical statement, and how the prince was happy we will come to know, and is it true that prince was happy or not, and how we can you can say give the stable type title, or we can say give the significance to this title with the reference of this very lesson. Now let us get started with the you can say pink line here over right hand side. And before reading this, I want to tell you that this has been written by Oscar Wilde. Now let's get started here. The Happy Prince was beautiful statue. It means here who is the prince and happy prince. It is a beautiful statue. He was covered with gold. He had a sapphire for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and precious stones? It means the story, or the you can say the plot here we can come to know that how the happy prince was a beautiful statue, and how he was covered with gold, and however he had some of the sapphires, means the you can say blue color stone for the eyes, and in his statue there is a ruby in his sword means talwar, as you are able to see here, that here happy prince has hold a sword and there is a ruby inside it. As one of the thing is that ruby is the pink stone, or you can say the red stone. So here we come to know that why did he want to part with all the golds. It means he was just covered with gold, right? But he wants to that everything will be taken out of me, and it should be help to the poor and needy one. So why he just want all these things? Why he does want with all the gold that he had and his precious stone will give to some other person who has need this? So we will come to know about the story, and let us get started with the first of the you can say paragraph. Here says, high above the city on a tall column stood a statue of Happy Prince. It means ये कहते हैं शहर के सबसे ऊंची कॉलम पे एक पेडिस्टल पे हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को लगाया गया है, जहाँ से हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू वो खड़ी है. He gilded with all over with thin you can say leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. Now here gilded means to covered with gold. उसके पूरा जो स्टैचू था वो फाइन गोल्ड से, उसकी एक हल्की सी परत जो हम कह सकते हैं एक लेयर थी उससे ढका हुआ था ना. उसके आईज में क्या था? सफ़ायर्स थे, ब्लू कलर के स्टोन्स थे दोनों में, और उसके तलवार में यानी स्वॉर्ड हिल्ट होता है, यू कैन से द हैंडल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्वॉर्ड. तो उसमें एक्चुअली देयर इज़ ए काइंड ऑफ रेड रूबी जो बहुत ही चमक रहा था. सो इफ़ इन शॉर्ट आई विल से दैट हैप्पी प्रिंस की मूर्ति में बहुत सारे ऐसे हीरे जवाहरात जड़े हुए थे जो यू कैन से काफ़ी प्रीशियस थे. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी लिटिल स्वेलो. स्वेलो इज़ ए काइंड ऑफ बर्ड. तो एक स्वेलो, एक चिड़िया जो थी वो उड़ रही थी एक रात शहर के ऊपर से. हिज फ्रेंड हैड गॉन टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर. अब उसके जो फ्रेंड्स हैं वो 6 हफ्ते पहले ही इजिप्ट जा चुके हैं. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो वहीं रह गई. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू. अब उसने सोचा कि वो भी इजिप्ट जाएगी. नाउ ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू. वो पूरा दिन उड़ती है. एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. वो जैसे ही रात का टाइम होता है तो वो उस शहर में पहुंच जाती है जहाँ हैप्पी प्रिंस की स्टैचू है. नाउ वे शैल आई पुट अप. अब वो बर्ड जो है वो बार बार में पूछता है कि मैं कहाँ रुकूं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मुझे रुकना है. ही सेड, उसने कहा, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन. शायद इस टाउन में कहीं तो मेरे रहने की जगह होगी. देन ही सॉ द स्टैचू ऑफ द टॉल कॉलम. इट मीन्स वो उस पेडिस्टल पे रखी हुई मूर्ति के बारे में सोचता है और देखता है उसे. उसको देख कर कहता है, आई विल पुट अप देयर. मैं यहाँ पर सोऊंगा या रहूँगा. इट्स अ फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर्स. आज काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, तो मैं यही सोऊंगा. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द
हैप्पी प्रिंस, और वो दोनों हैप्पी प्रिंस के दोनों पैरों के बीच में सो जाता है। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, इट मीन्स वो जो गोल्डन से कवर्ड स्टैचू थी उसके नीचे सोने के कारण उसको फील आ रही थी, मेटाफोरिकली वो उसके स्टैचू को क्या बोल रहा है, गोल्डन बेडरूम बोल रहा है, बिकॉज वो गोल्डन स्टैचू के नीचे सो रहा है। सो ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड, वो सॉफ्टली अपने आप से कहता है यही बात कि आज तो मुझे सोने के लिए एक सोने का बेडरूम मिला है। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, वो सोने ही जा रहा था, बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल ऑन हिम, जैसे ही वो सोने जा रहा था तभी ऊपर से एक बूंद, यू कैन से एक हैवी जो पानी की बूंद थी वो गिरती है उसके पंखों पे। व्हाट ए क्यूरियस थिंग, ये क्या चीज़ है। ही क्राइड देयर इज़ नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, यहाँ तो बरसात के बादल भी नहीं है, ये पानी कहाँ से आया। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड द ब्राइट येट इट इज़ रेनिंग, ये बरसात हो रही है जबकि पूरा का पूरा जो आसमान है वो क्लियर है, तारे चमक रहे हैं। देन ड्रॉप फॉल, तभी बूंद गिरती है। What is the use of the statue if it cannot keep the rain off? He said. इस स्टैचू का क्या काम है अगर मेरी जो पंख हैं या फिर मैं इस रेन से बच नहीं सकता तो। इट मीन्स अगर वो स्टैचू उसको बारिश से नहीं बचा सकता तो वो उसके किसी काम का नहीं है। आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, शायद मुझे किसी घर की चिमनी में चले जाना चाहिए। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई ओवर, तो भी उड़ने ही वाला है। तो चिमनी क्या होता है, चिमनी पॉट क्या होता है, जनरली हम देखते हैं कि घरों के ऊपर जो नीचे फर्नेस होती है उसके ऊपर एक धुआं निकलने के लिए एक पाइप बनाई जाती है और यू कैन से ऑन द रूफ ये कवर की जाती है ब्रिक्स से। तो जब ब्रिक्स से चीज़ें करी जाती हैं कवर्ड तो उससे एक चिमनी बनती है जहाँ से हमेशा स्मोक आउट होता है घर का, राइट। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल and he looked up and saw, what did he see? Now वो एकदम से देखता है, अपने विंग्स को खोलता है और जो थर्ड ड्रॉप है वो फेल होती है, गिरती है और ऊपर की तरफ देखता है, वो देखता है ये क्या हो रहा है। Now the eyes of the happy prince were filled with tears and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. Now you can say the eyes of हैप्पी प्रिंस वॉज फिल्ड विद टीयर्स। अब हैप्पी प्रिंस की आंखों में आंसू थे और वही आंसू उसको बूंद की तरह उसके पास गिर रहे थे। एंड टीयर्स जो थे वो उसके गोल्डन चिक्स पे से आ रहे थे, यानी यू कैन से जैसे गिर रहे थे। देन उसके फेस जो उस मून लाइट में बहुत सुंदर लग रहा था, उसे देखकर छोटी सी चिड़िया का बहुत मन पसीज गया, यानी कि पीटी से दया से भर गया। तो वो पूछता है, हु आर यू, तुम कौन हो। तो हैप्पी प्रिंस जवाब देता है दैट आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ। तो स्वेला पूछती है वाई आर यू वीपिंग देन, तुम क्यों रो क्यों रही हो तुम, अगर तुम एक हैप्पी प्रिंस हो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, वो कहता है तुमने मुझे पूरा भिगा दिया। हियर ड्रेंच्ड मीन्स टू सॉक मी। सो हियर When I was alive and a human heart, जब मैं ज़िंदा था और मेरे पास एक धड़कता हुआ दिल था। ह्यूमन हार्ट मीन्स जब मैं एक इंसान हुआ करता था और मेरे पास इंसान वाला दिल था, क्योंकि अब उसके पास जिस चीज़ का दिल है वो है एक मेटल का, जिसे हम ब्लड कहते हैं, क्योंकि मूर्ति में तो एक जिंदा दिल नहीं हो सकता, राइट। सो आंसर द स्टैचू, अब स्टैचू आंसर देती है कि जब मैं ज़िंदा था और मेरे अंदर ह्यूमन हार्ट था, आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, मैं जानता ही नहीं था कि आंसू होते क्या हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, मैं बड़े पैलेस में रहता था, महल में रहता था। वेयर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ दुख एंटर नहीं कर सकता था, आ नहीं सकता था, उसको परमिशन ही नहीं थी, यानी कि सब कुछ बहुत खुश था उसके साम्राज्य में, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। माई कर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे राज दरबारी ही मुझे क्या बुलाते थे, हैप्पी प्रिंस। कर्टियर्स होते हैं जो कोर्ट में मेंबर होते हैं, लाइक मंत्री, राज्य मंत्री एंड ऑल दिस काइंड ऑफ मिनिस्टर्स। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, आई रियली, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता था उस टाइम पे। सो आई लिव्ड एंड सो आई डिड, मैं जैसे ही जिया ऐसे ही मैं मर गया, यानी कि हैप्पी ही रहा और हैप्पी ही मरा। एंड नाउ दैट आई एम डेड, जब मैं मर गया हूँ, दैट हैव सेट मी अप
here so high, and I can see the ugliness and all the miseries of the city of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. नाउ अब कहता है हैप्पी प्रिंस, जब मैं मर गया हूँ तो मुझे मेरे स्टैचू को सबसे हाई पॉइंट पर खड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर मैं अपने ही कंट्री में यानी कि अपने रीजन में होने वाले उस हिस्से को देख रहा हूँ जो इसका अगलीनेस वाला हिस्सा है, यानी कि वो उसके बुरे फेस को देख रहा है, उनकी दयनीयता को देख रहा है, जिस कंडीशन बुरी कंडीशन में उसकी सिटी है उसको देख रहा है। फिर वो कहता है कि मेरे पास जो दिल है वो लेड का है, इसके अलावा फिर इसीलिए मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता बस रोने के अलावा। वट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ। अब यहाँ स्वेलो के मन में एक चीज़ आती है कि वो ये कह रहा था कि मैं तो आज अच्छे से सोऊंगा, क्योंकि आज तो मेरा जो बिस्तर है वो किस चीज़ का बना हुआ है, गोल्ड का। तो ये बात सुन के कि वो पूरा का पूरा गोल्ड, यू कैन से गोल्ड से नहीं बना हुआ, बल्कि गोल्ड की एक थिक लेयर सी उस पर लगी हुई है। तो कहता है अच्छा ये पूरा गोल्ड का नहीं बना। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क। वो कहने वाला था, तो उसने सोचा छोड़ो यार, वो अभी भी थोड़ा सा सेंटी है तो मैं उसको ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वरना मैं पूछना जरूर चाहता था तुम पूरे सोने की नहीं हो। नाउ फार अवे कंटिन्यू द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस। अब वो बड़े ही धीमे से स्वर में स्वेलो से कहता है बहुत दूर, यानी कि यहाँ से काफ़ी दूर है। फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट, बहुत दूर एक छोटी सी गली में देयर इज़ अ पुअर हाउस, वहाँ पर क्या है एक गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन, उसकी एक विंडो खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी ए वुमन सीटेड एट ए टेबल, वहाँ देख सकता हूँ कि एक टेबल पर एक वुमन जो है वो बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन, उसका जो चेहरा है वो पतला है, एंड वोन है, काफ़ी थका हुआ है। एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, उसके हाथ जो है वो काफ़ी रफ हो चुके हैं, रेड हो चुके हैं, और प्रिक्ड किस चीज़ से रेड हो चुके हैं, रफ हो चुके हैं। प्रिक्ड होता है चुभना, बाय नीडल, नीडल उसके अंदर जो चुभती है, यानी कि वो किसी यू कैन से सिम्स्ट्रेस का काम करती है, दर्जी वाला काम करती है किसी के लिए, एम्ब्रॉयडरी का काम करती है। फॉर शी इज़ ए स्ट्रीमस्ट्रेस, वो क्या है वो टेलर है, वो एम्ब्रॉयडरी करती है। शी इज़ एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर ऑन ए सेटिन गाउन ऑफ द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर। नाउ अब वो क्वीन की एक मेड ऑफ ऑनर है, यानी कि एक ऐसी जो सबसे नज़दीक होती है क्वीन के, ऐसी मेड। तो वहाँ यू कैन से उसका एक गाउन है सेटिन का, सेटिन एक कपड़ा है यहाँ पे, उस पे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही फ्लावर की। नाउ अब जो क्वीन मेडन है उसको पहनना है, किसको कौन सा गाउन पहनना है, सेटिन का गाउन पहनना है। कहाँ पे, नेक्स्ट कोर्ट बॉल में। कोर्ट बॉल होता है जहाँ पर महलों की यू कैन से काइंड ऑफ पार्टी होती है। बॉल होता है एक ऐसा जगह जहाँ पर लोग डांस करते हैं। सो इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल। अब एक बेड के कॉर्नर में उसका जो बच्चा है वो बीमार है। ही हैज़ ए फीवर, उसको बुखार है। एंड ही इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो अपनी माँ से ऑरेंजेस मांग रहा है, संतरे मांग रहा है, बट वो इतने पूरे कि वो नहीं ला सकते हैं। तो उसके जो मदर हैं, यानी कि हिज मदर हैड नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, वो उसको सिर्फ एक नदी का पानी दे देती है, उसके पास और कुछ नहीं है। सो ही इज़ क्राइंग, वो रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट ब्रिंग द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट। तो अब इस बात को देखकर, इसने दुख को देख के हैप्पी प्रिंस काफ़ी दुखी और ज़्यादा दुखी हो जाता है, और वो स्वेलो को रिक्वेस्ट करता है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम मेरी स्वॉर्ड हिल्ट, यानी कि तुम मेरी तलवार के हैंडल में से जो रूबी लगी हुई है, क्या तुम इसे निकाल कर उस बेचारी माँ तक नहीं पहुँचा सकते। माई फीट आर फास्ट एंड टू द पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। तो वो कहता है कि मेरे जो फीट हैं, पैर हैं, वो कहाँ हैं, पेडेस्टल में अटके हुए हैं, और मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता। नाउ यहाँ स्वेलो कहता है इस बात पे, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मुझे इजिप्ट जाना है। ये कौन कहता है, वो पक्षी कहता है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, नील यहाँ एक रिवर का नाम है जो इजिप्ट में रहती है, इजिप्ट में बहती है। सो हियर वो कहता है कि मेरे दोस्त उड़ चुके हैं और वो नील नदी के किनारे
पहुंच चुके हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और वो लोटस यानी कमल के फूल जो हैं उनके साथ वो बातें कर रहे हैं। Soon they will go to sleep, और जल्दी ही वो सोने चले जाएंगे। The happy prince asked the swallow to stay with him for one night. अब हैप्पी प्रिंस जो है वो swallow को रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मेरे साथ एक रात गुजारना चाहोगे, रुक सकते हो मेरे साथ, तुम मेरा मैसेंजर बनकर अगर रुकना चाहो तो। द बॉय इज थर्स्टी एंड द मदर इज सो सैड। अब जो बच्चा है उस घर में वो काफ़ी प्यासा है। ही नीड ऑरेंजेस टू ड्रिंक, ऑरेंज जूस टू ड्रिंक, और जो माँ है वो काफ़ी सैड है, तो तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे। नाउ स्वेलो कहता है आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर्ड द स्वेलो। नाउ हैप्पी प्रिंस उसे रुकने के लिए कहता है, तो स्वेलो उसको आंसर देता है आई डोंट लाइक द बॉयज़, मुझे बच्चे पसंद ही नहीं है। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मुझे तो इजिप्ट ही जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी। हियर सॉरी का मतलब माफ़ी मांगना नहीं है, बल्कि वो एक्सक्यूज़ दे रहा है कि मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं, इसलिए मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं रुक सकता। तो इस बात को सुनकर हैप्पी प्रिंस जो है वो सैड हो जाते हैं, थोड़ा उदास हो जाते हैं। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर। अब स्वेलो कहता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। वो कहता है बट ही एग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, लेकिन वो उसके साथ एक रात रुकने के लिए मान जाता है और उसका मैसेंजर बन जाता है, यानी कि जो उसके चीज़ों को यहाँ से वहाँ पहुँचाए। नाउ इस पे प्रिंस कहता है थैंक यू लिटिल स्वेलो, वो उसको शुक्रिया अदा करता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम यहाँ रुके मेरे लिए। द स्वेलो पिक्ड आउट ग्रेट रूबी आउट ऑफ प्रिंस स्वॉर्ड। अब जो स्वेलो है, चिड़िया है, वो क्या कर लेता है, प्रिंस के जो स्वॉर्ड है उसके हैंडल में से वो रूबी निकाल लेती है एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक। वो अपने बीक यानी चोंच में उसको दबा लेती है और उड़ जाती है ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, यानी कि उस सिटी में जितने भी रूफ्स थे यानी कि घर थे उनकी छतों के ऊपर से। राइट, ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर। वहाँ पर वो एक कैथेड्रल यानी चर्च का एक टावर है जहाँ पर चर्च पढ़ी जाती है, यानी यू कैन से बाइबल पढ़ी जाती है, जहाँ चर्च जिसे हम कहते हैं वहाँ कैथेड्रल है। सो उसके टावर के ऊपर से गुजर रहा है वो, जहाँ पर एक मार्बल के एंजल्स यानी कि परियों की स्कल्प्टेड हैं, यानी कि वहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं, उनको वाइट फर्निश किया गया है मार्बल से। नाउ ही पास्ड बाय पैलेस एंड ही हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। अब वो एक महल के बाहर से जाता है और वहाँ से एक नाचने और गाने की आवाज़ें सुनता है। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर। अब एक लड़की बालकनी में बाहर आती है अपने लवर के साथ, अपने बिलव्ड के साथ, उस यू कैन से उस डांस पार्टी में से। वो कहती है आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। और वो कहती है कि काश अब जो इस बॉल है इसके आगे नेक्स्ट एक स्टेट बॉल होगा, यानी कि एक पार्टी होगी, काश उसके लिए मेरी ड्रेस जो हो जल्दी से टाइम से तैयार हो जाए। शी सेड, वो कहती है आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू द एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट। मैंने अपने जो ड्रेस है उस पर फ्लावर को एम्ब्रॉयडरी करने के लिए दी हुई है, बट द सीमस्ट्रेसेस आर सो लेजी। पर वो क्या कहती है कि जो ये दर्जी हैं वो काफ़ी लेज़ी होते हैं, आलसी होते हैं। जस्ट सी हियर आयरनी, जो ये लड़की है मे बी ये मेड है क्वीन की, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो किस तरीके से कितनी निर्दयता से ये चीज़ बोल जाती है कि भाई उनके पास कोई काम नहीं है, वो बहुत लेज़ी फील करते हैं, वो टाइम से मेरा गाउन नहीं देंगे या फिर नहीं दे सकते, क्योंकि वो जानती ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसका बच्चा बीमार है या नहीं है। सो ऑल दिस इज़ गोइंग टू हैपन विद दिस पर्टिकुलर लेडी। सो ही पासिस ओवर द रिवर। नाउ हियर जो बर्ड है वो नदी को पार कर जाता है एंड सो द लैंटर्न हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप। अब जो क्या करता है यहाँ पर, वो शिप मास्ट क्या चीज़ होती है, वो कपड़ा होता है जिससे शिप जो वो सेल करता है, यानी कि चलता है। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन। लास्ट में वो कहाँ आता है, पुअर वुमन के घर आता है और उसमें देखता है, यानी कि जिस घर में उसको जाना था वो वहाँ पहुँच जाता है, खिड़की के अंदर से वो अंदर चला जाता है। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरली ऑन हिज
बैड, यानी कि वो काफ़ी मचल रहा था, टॉस हो रहा था। टॉस का मतलब यहाँ कॉइन की तरह टॉस होना नहीं है कि ऊपर नीचे होना, हाँ, बट उसमें मूवमेंट ऐसी हो रही थी कि वो बहुत ज़्यादा तड़प सा रहा था अपने बिस्तर में। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, शी वॉज टायर्ड, शी वॉज सो टायर्ड। अब जो उसकी माँ है वो गहरी नींद में जा चुकी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। एंड ही हॉप्ड, एंड अब वो क्या करता है, वो फुदकता है एंड ले द ग्रेट डूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वंस थिम्बल। अब थिम्बल क्या होता है, ये थिम्बल एक ऐसी चीज़ होती है जब हम कभी एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं तो हमें अपने थंब में एक कैप पहननी होती है जिसकी वजह से नीडल उसमें ना लगे। देन वो उस थिम्बल के पास अपने रूबी को है वो रख देता है। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड विद हिज विंग्स। अब वो क्या है, उस बच्चे के पास जाता है और जिसको गर्मी लग रही होती है तो वो उसका विंग से क्या है हवा कर देता है, जिससे थोड़ी सी ठंडक उस तक पहुंचती है। नाउ जो छोटा सा बच्चा है जो बीमार, वो कहता है हाउ कूल आई फील, अब मुझे थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, स्लम्बर होता है गहरी नींद। एंड ही सैंक इनटू डिलीशियस मीन्स सैंक मतलब डूबना, सिंक की सेकंड फॉर्म है, बट यहाँ सैंक जो है वो डूबना यानी पानी में डूबना नहीं है, या गहरी नींद में डूबने की बात हो रही है। सो बच्चा जो है गहरी नींद में सो जाता है। तो हमें पता चलता है कि कितने अच्छा हैप्पी प्रिंस का दिल है, एंड ऐसा ही कितना अच्छा हमारे स्वेलो का दिल है, जो भले ही ये कह रहा था कि मुझे बच्चे पसंद नहीं है, बट हाल फिलहाल वो उसकी बहुत केयर कर रहा है। Then the swallow flew back to the happy prince and he told him what he had done. अब वो वापस जाता है हैप्पी प्रिंस के पास और उसको सब कुछ बताता है क्या जो उसने क्या क्या किया। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड, ये तो बहुत क्यूरियस है, वो कहता है बहुत अच्छा काम किया है तुमने। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। अब जो बर्ड है वो कहता है कि भले ही आज थोड़ी सर्दी ज़्यादा है लेकिन फिर भी मैं बहुत गर्म महसूस कर रहा हूँ। तो इस पे हैप्पी प्रिंस कहता है ये इसलिए है बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नाउ यह गुड एक्शन का मतलब क्या है, यहाँ कोई एक्शन यानी मारपीट नहीं की है। एक्शन का मतलब है उसने एक अच्छा काम किया है, वो अपने चीज़ों को छोड़ कर दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहा है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगिन टू थिंक, अब जो लिटिल स्वेलो वो सोचने लग जाता है। एंड देन फेल स्लीप, थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, क्योंकि वो सोचते सोचते हमें सोना पसंद करता है और हमेशा सो ही जाता है। तो वैसे ही अब जो छोटा बर्ड है वो सो गया है। नाउ व्हेन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड ए बाथ। अब जैसे ही दिन उगा वो रिवर में बाथ यानी नदी के किनारे वो यू कैन से नहाने चला गया। टू नाइट अ गो टू इजिप्ट, आज रात को मैं किस चीज़ के लिए उड़ान लगाऊंगा, इजिप्ट के लिए उड़ान लगाऊंगा। सेड द स्वेलो, कौन कहता है ये बात, वो छोटा सा पक्षी। एंड ही वॉज इन द स्पिरिट सेज द प्रोस्पेक्ट, अब वो क्या है, वो एक तरीके के जोश में है कि हाँ उसको अपने फ्रेंड से मिलना है। He visited all the monuments and sat a long time on the top of church steeple. चर्च स्टीपल वो पॉइंट होता है चर्च की बिल्डिंग का जिसका फ्रंट एरिया होता है, और फ्रंट एरिया में भी सबसे ऊपर होता है। या इट मीन्स सबसे ऊपर जब क्रॉस का निशान होता है यानी प्लस वाला निशान होता है उसके ऊपर वो बैठ जाता है, बिकॉज वो सारे मोन्यूमेंट्स उस शहर के घूमकर वहाँ आराम फरमा रहा होता है। When the moon rose he flew back to the happy prince. Now मून जैसे ही मतलब यानी रोज़ यहाँ का मतलब गुलाब नहीं है, ये रोज़ मीन्स द सेकंड फॉर्म ऑफ राइस। तो वो कहता है कि जैसे ही चंद्रमा अपनी जगह पर जाता है यानी कि रात को उगता है तो वैसे ही वो हैप्पी प्रिंस के पास जाता है और उसे अलविदा लेने के लिए कि मैं अब कहाँ जा रहा हूँ, इजिप्ट जा रहा हूँ। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड, आई एम जस्ट यू कैन से स्टार्टिंग। अब वो हैप्पी प्रिंस से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई और काम है इजिप्ट में, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, क्या तुम्हारे लिए कोई काम हो तो मैं वहाँ कर दूँगा तुम्हारा, मैं बस अभी जा ही रहा हूँ। नाउ स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, अब उसको रोकते हुए कहता है कि स्वेलो यानी पक्षी तुम एक मिनट रुको। विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक दिन और रुकोगे यानी एक रात और रुकोगे। देन इस पर स्वेलो कहता है आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मुझे इजिप्ट जाना है और मेरा फ्रेंड्स जो है वो सारे वेट कर रहे हैं, यानी कि सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ये बात कौन कहता है, लिटिल स्वेलो।
नाउ swallow swallow little swallow said the prince। और फिर से कहता है उसको, swallow swallow little swallow far away across the city I see a young man in a garret। मैं बहुत दूर से देख पा रहा हूँ कि एक यंग आदमी, एक नौजवान व्यक्ति अपने गैरेट में बैठा हुआ है। गैरेट होता है किसी भी होम का एक ऐसा हिस्सा जो छत के साइड में हो लेकिन बहुत अंधेरा हो उसमें। ही इज़ लर्निंग ओवर अ डेस्क। वो क्या कर रहा है, कुछ लिख पढ़ रहा है डेस्क के ऊपर, कवर्ड विद पेपर्स, यानी कि उसका जो डेस्क कवर हो रखा है पूरे पेपर से। एंड इन द ग्लास ऑफ हिज साइड देयर इज ए बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स। विदर्ड्स मीन्स जो ड्राई हो चुके हैं, सूखे हो चुके हैं। वायलेट्स मीन्स वायलेट कलर के फूल्स को, जो फूल मतलब फ्लावर्स, सो वह सूख चुके हैं। तो कहता है कि इसका जो डेस्क है वो काफ़ी बिखरा हुआ है और वो काफ़ी टेंस लग रहा है, क्योंकि वो एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से है जो लिखता है लोगों के लिए, और जैसे ही वो लिखता है तो उसके हिसाब से उसकी कमाई नहीं हो पाती और वो बहुत दुखी है इस बात के लिए, और वो अपनी पूरी चीज़ों में पूरे अपना राइटिंग जो काम भी पूरा नहीं कर पा रहा है। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प। इट मीन्स उसके जो बाल हैं वो काफ़ी भूरे हो चुके हैं और क्रिस्प मतलब रूखे हो चुके हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज ए पोमेग्रेनेट। और जो उसके लिप्स है यानी कि वो अनार, पोमेग्रेनेट क्या होता है, अनार की तरह लाल है। अब वो लाल क्यों है, क्योंकि वो उस जगह से हिल ही नहीं रहा है, ना उठ रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है। जब हम ज़्यादा देर तक पानी नहीं पीते तो हम अपने होठों को खाने लग जाते हैं, और उन होठों को खाने की वजह से जो होठ हैं वो रेड हो जाते हैं। तो यहाँ वही बात की गई है, यानी कि वो उसने अपना खाना पीना भी छोड़ रखा है। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़। लेकिन उसके पास बहुत बड़ी और बहुत एम्बिशियस आइज़ हैं, बहुत बड़े सपने देखने वाली आँखें हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। अब वो किसी थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक प्ले यानी कि एक जो ड्रामा है, एक नाटक है, वो एक ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। बट इज़ टू कोल्ड इज़ टू राइट एनी मोर। अब यहाँ बहुत ठंड है कि वो कुछ इससे ज़्यादा लिख पाए। नाउ देर इज़ नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट। अब वो बताता है कि वहाँ उस ग्रेट में यानी उस फर्नेस में उसके जहाँ वो है वहाँ कोई ना तो यू कैन से कोई फर्नेस है, ना ही कोई आग है, और वहाँ पर वो भूखा यानी कि तड़प रहा है, और भूख के कारण उसको फेंटनेस यानी उसका चेहरा जो पीला हो चुका है। सो हियर आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो। स्वेलो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक लूँगा। हु रियली हैड ए गुड हार्ट। तुम्हारे सिर्फ गुड हार्ट के लिए मैं तुम्हारे पास एक रात और रुकूँगा। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। अब वो पूछता है कि क्या तुम अब अपने अलग कोई रूबी दोगे उस प्ले राइट को देने के लिए, या प्ले राइट का मतलब एक ऐसा इंसान जो प्लेस लिखता है, ड्रामाज लिखता है। अलास आई हैव नो रूबी नाउ सैड प्रिंस। प्रिंस कहता है अब तो मेरे पास कोई रूबी भी नहीं है, मैं क्या दूँ। नाउ हे वी कम टू नो दैट, उसके पास ऐसा एकदम से पता चलता है कि मेरे पास तो कोई रूबी ही नहीं है। देन माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। अब सिर्फ मेरी आँखें ही हैं जो मेरे पास बची हुई हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स विच वो brought out of India 1000 years ago। अब यहाँ पे इंडिया का एक रेफरेंस दिया गया है, वो ये कहता है कि मेरी आँखें के जो सफ़ायर्स है, ब्लू कलर के स्टोन्स हैं, उन्हें लाया गया था कहाँ से, उन्हें लाया गया था इंडिया से। इसका मतलब क्या है, जिस साइड में हमारे हैप्पी प्रिंस रहा करते थे उस साइड में जो इंडिया है उसका एक सिक्का चलता था कि वहाँ से बहुत से जेम्स जो है वो मिलते हैं, स्टोन्स जो है वो मिलते हैं। सो हम यहीं तक कर रहे हैं, आज हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ तक है। सो टेक ए रीडिंग आउट ऑफ दिस, और हमें जो जितने मुश्किल वर्ड्स इसमें लगे हैं वी हैव टू राइट इट डाउन इन अ फेयर नोटबुक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हैप्पी प्रिंस पार्ट फर्स्ट। So we will continue this very video in the next you can say part with the part 2. So let's take the reading of this very lesson. Till then we will meet in the next video. I hope this has been clear to you till this very you can say page number. So I hope you will write it down each and every difficult word meaning in your notebook, and we'll meet in the next video. Thank you.